السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے معظم جاہی مارکیٹ، ایک عظیم تاریخی ورثہ۔ معظم جاہی مارکیٹ کو آصف جاہی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس آصف جاہی حکمران نے معظم جاہی مارکیٹ کو تعمیر کیا، اس کے نام سے تعمیر کیا۔ اس کے جگہ کا انتخاب، فن تعمیر اور دوسری اہم باتوں پر اس خاص پروگرام میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ قلب شہر کے بیچوں بیچ یہ عظیم الشان عمارت نظام ہفتم میر عثمان علی خان نے سن 1935 میں تعمیر کروائی تھی، جسے معظم جاہی مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ نواب میر عثمان علی خان نے اپنے دوسرے صاحبزادے نواب معظم جاہ بہادر کے نام سے اس عظیم الشان عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں سٹی امپروومنٹ بورڈ نے معظم جاہی مارکیٹ کی تعمیر کی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے اسے سینٹرل مارکیٹ کہا جاتا تھا۔ معظم جاہی مارکیٹ کی تعمیر میں گرینائٹ کا استعمال کیا گیا۔ معظم جاہی مارکیٹ دراصل ایک مثلث نما عمارت ہے جس کا رقبہ 1.77 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ مثلث نما معظم جاہی مارکیٹ کے بالائی حصے پر ایک گھنٹہ گھر ہے اور 2 میناریں بھی ہیں۔ اس گھنٹہ گھر سے ہر گھنٹہ گھنٹیاں بجتی ہیں۔ آصف جاہی حکمران جو بھی عمارت تعمیر کرتے تھے وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعمیر کرواتے اور بے مثال فن تعمیر مضبوطی کا پہلو اس میں ضرور ہوتا، اور معظم جاہی مارکیٹ کی عمارت میں بھی یہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں۔ 90 سال گزرنے کے باوجود معظم جاہی مارکیٹ اپنی بے مثال فن تعمیر، مضبوطی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، معظم جاہی مارکیٹ کی تعمیر کے تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں۔ 90 سال گزرنے کے باوجود بھی معظم جاہی مارکیٹ مضبوط اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے فن تعمیر، اس کی مضبوطی کا راز ہم جانیں گے سینئر صحافی جناب محمد ریاض احمد صاحب سے۔ شکریہ ارشد، آپ نے جس طرح کہا ہے کہ معظم جاہی مارکیٹ کی جو شان و شوکت ہے وہ اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور خاص طور پہ اس لیے میں شاہکار کہہ رہا ہوں کیونکہ معظم جاہی مارکیٹ کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور حکومت میں یہ اس کی تعمیر عمل میں آئی تھی، اور سٹی امپرومنٹ جو بورڈ ہوا کرتا تھا، یعنی شہر کو خوبصورت بنانے، شہر میں عمارات کی تعمیر کے لیے یہ بورڈ کی تشکیل دی گئی تھی۔ تو بہرحال اس بورڈ کے جو سربراہ تھے وہ سربراہ تھے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دوسرے فرزند نواب میر شجاعت علی خان معظم جاہ بہادر، اور انہی کے نام سے یہ مارکیٹ قائم کی گئی ہے۔ تو بہرحال بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح آپ کو منظر نظر آ رہا ہے۔ اور آپ سب سے پہلے اب دیکھیے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ سٹی امپرومنٹ جو بورڈ تھا وہ بورڈ نے اس کی تعمیر عمل میں لائی، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب اس کی تعمیر عمل میں لائی گئی تو جگہ کا انتخاب بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ قلب شہر میں، کیونکہ اگر آپ اس مارکیٹ کو دیکھیں گے معظم جاہی مارکیٹ یہ قلب شہر میں واقع ہے اور شہر کے بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ بیگم بازار جو مارکیٹ ہے وہ ملے گی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور آگے جائیں گے کچھ کلومیٹر لاڑ بازار آپ کو نظر آئے گا، اور ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ سلطان بازار برٹش ریزیڈنسی کی جو عمارت ہوا کرتی تھی، جو آج وہ خواتین کی یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی ہے، یہ وومنس یونیورسٹی یعنی کنگ کوٹھی وومنس کالج کوٹھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر بھی ایک بازار ہوا کرتا تھا۔ تو حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر اور ان کے فرزند نے یہ سوچا کہ شہر کے درمیان یعنی قلب شہر میں ایک مارکیٹ تعمیر کی جائے۔ تو بہرحال وہ مارکیٹ تعمیر کی گئی۔ 1932 میں اس مارکیٹ کی آپ دیکھیں گے کہ اس عالیشان مارکیٹ کی تعمیر شروع ہوئی اور 1935 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہاں اس بات کا بہت تذکرہ ضروری ہوگا کہ آپ ادھر دیکھیے، آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور وہ بلڈنگ آپ کو دیکھیں وہ ہے حیدرآباد کی پہلی
आरसीसी जो बिल्डिंग है, हैदराबाद की पहली आरसीसी बिल्डिंग, वो है बैचलर्स क्वार्टर से उसे कहा जाता है और मुजर्रदगाह भी कहा जाता था। तो वहाँ बैचलर्स जो थे वहाँ क़याम करते थे। तो बहरहाल उसके बिल्कुल करीब ये मौजम जाही मार्केट तामीर की गई है और इस तामीर में ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा गया कि यहाँ पर आप देखेंगे इतने खूबसूरत अंदाज में ये तामीर अमल में लाई गई। 120 दुकानात यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर खास तौर पर जो खुश्क मेवा हुआ करता था यानी ड्राई फ्रूट का, वो फरोख्त किया जाता था। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मौजम जाही मार्केट जो आज हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर पान की एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। और आपको यही बता दूं कि 1.77 एकड़ पर यह मौजम जाही मार्केट तारीखी तामीर की गई। और इसकी खास बात जैसा कि अरशद साहब ने हमसे पूछा है, तो आपको बता दूं कि ये मौजम जाही मार्केट में एक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए आप देखेंगे कि ग्रेनाइट का पूरा ग्रेनाइट है, आपको फन तामीर की शाहकार इमारत है। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ग्रेनाइट नजर आ रहा है आपको, तो पूरा ग्रेनाइट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में इस तरह की खूबसूरत इमारत जो पूरी तरह ग्रेनाइट से तामीर की गई है वो शामिल नहीं है। खास बात 3 चीजें हैं। एक आप देखेंगे कि जो इसकी मीनारें हैं, 2 मीनारों का हामिल है। एक तरफ आपको देख सकते हैं वहां पर एक मीनार दिखाई दे रही है और ये साइड जो है वहां पर भी एक मीनार आपको दिखाई दे रही है। और इसके जो घंटाघर का जो बात है वो गैर मामूली है, क्योंकि हैदराबाद में 12 घंटाघर है यानी क्लॉक टावर्स है, जिसमें इंतहाई खूबसूरत अगर कोई क्लॉक टावर है तो वो कल्ब शहर में वाक़ मौजम जाही मार्केट का क्लॉक टावर है, आप देख रहे हैं वहां पर। और जो टावर है वो ऑक्टागोनल है यानी 8 रुखी है। वो आप किधर से भी देखेंगे आपको अंदाजा लगेगा कि ये ऑक्टागोनल है यानी 8 रुखी ये है और गैर मामूली है। और आप ये भी जानते हैं कि जिस अंदाज में ये घंटाघर तामीर किया गया है, ऐसे तो अब जो हैदराबाद के 12 घंटाघर है उनमें से कई घंटाघर तो गायब हो चुके हैं यानी उनकी जो वजूद है वो खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए आप किस तरह शान से ये ठहरा हुआ है घंटाघर मौजम जाही मार्केट का, और उसकी जो प्लानिंग की गई थी वो गैर मामूली थी जी। तो बहरहाल ये खास बातें हैं। और आपको यही बता दूं कि जिस अंदाज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तामीर की गई, जिस अंदाज में हाई कोर्ट की इमारत तामीर की गई, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत तामीर की गई, यहाँ तक कि निज़ामिया तिबी शिफाखाना अगर आप देखेंगे या मक्का मस्जिद देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस खूबसूरत अंदाज में उन इमारतों की तामीर अमल में आई। और वही हैदराबाद की शान में इजाफा करती हैं इमारतें, और ये इमारत भी हैदराबाद की एक पहचान है। शुक्रिया रियाज साहब, आपने मौजम जाही मार्केट के फ़न तामीर, उसकी खुसूसियात, उसकी तारीख़ के ताल्लुक से तफसील से रोशनी डाली। आपका शुक्रिया। और हम आप दूसरी जानिब का जायज़ा लेते हैं। नवाब मीर उस्मान अली खान ने मौजम जाही मार्केट शहर के बीचों बीच इसलिए तामीर करवाई थी कि एक ही छत के नीचे अपनी रियाया को तमाम साजो सामान मिल जाए। फल, सब्जियां, किराने की अशिया, ग्रोसरी, दूध वगैरह एक ही छत के नीचे मिल जाए। आज से 100 साल पहले नवाब मीर उस्मान अली का ये कॉन्सेप्ट और सोच थी जो आज हम माल वगैरह की शक्ल में देखते हैं। मौजम जाही मार्केट के अंदरूनी हिस्से में इस वक्त सब्जियों, किराना, दूध समेत मुख्तलिफ नौइयत की दुकानें हैं और बैरूनी हिस्से में आइसक्रीम, अतर वगैरह की दुकानें हैं। GHMC के मुताबिक मौजम जाही मार्केट के अहाते में 120 से ज़्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों में बाज़ दुकानें इतनी क़दीम हैं कि इसके मालिकान नस्ल दर नस्ल यहाँ कारोबार करते आ रहे हैं। नहीं, ये बहुत मजबूत इमारत है। साथ में निज़ाम बनाई थी उनके बेटे के नाम से, मौजम जाह के नाम से, मौजम जाही मार्केट। तो उस ज़माने में जो है जैसा आज मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उस ज़माने में इनकी ये सोच थी कि एक मार्केट में सारी चीज़ें मिले, मटन मिले, तरकारी मिले, मुनाफिक, किराना शॉप, जनरल वगैरह सारी आइटम मिले। उस ज़माने में सोच थी कि आजकल एक छत के नीचे आया। एक छत के नीचे पूरा आना, उस ज़माने में सोच थी, वो सोच के बनाई थी और शानदार जो है मजबूत इमारत बनाई। कि हमारे वालिद साहब लगाई थी दुकान। तो वालिद साहब जब शुरू में दुकानें कोई नहीं ले रहे थे, आबादी नहीं थी, कोई नहीं ले रहे थे, तो अखबार में डाले थे ये लोग कि जो है 6 महीने किराया नहीं देना, आपका कारोबार जमने के बाद किराया देना, ऐसा बोले थे। तो उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता आए लोग, हमारे वालिद साहब भी आके दिए। तो जो वालिद साहब की मेहरबानी है, हम भी चला रहे हैं, अल्लाह का फजल है, सब ठीक है।
छत वगैरह सारी चीज़ें मजबूत है। खुले माहौल में हवा आती खुले माहौल में हवा आती है, बहुत शानदार है सर, सारी चीज़ें मजबूत है। आजकल की इमारतों में ये मजबूती नहीं है, थोड़े दिन में इधर से टूटना उधर से टूटना शुरू हो जाता है। मौजमजाही मार्केट के बैरूनी हिस्से में कुछ फासले की बात करें तो यहाँ कभी बड़ी फ्रूट की मार्केट हुआ करती थी। शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफा और ट्रैफिक की वजह से मौजमजाही मार्केट से फ्रूट मार्केट को मुंतकिल कर दिया गया। 80 और 90 के दरमियानी दहे में मौजमजाही मार्केट के पास सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट हुआ करती थी। इस फ्रूट मार्केट को पहले कुत्तापेट मुंतकिल किया गया, अब इसे बाटा सिंगारम मुंतकिल किया जा रहा है। आज भी मौजमजाही मार्केट में होलसेल की कुछ फ्रूट की दुकानें हैं। इन दुकानों में बास काफ़ी क़दीम 60 साल पुरानी दुकानें भी हैं जो होलसेल दुकानों में तब्दील हो गईं। हमने मौजमजाही मार्केट फ्रूट मार्केट के क़दीम ताजिरों से बातचीत की तो उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा किया। बहुत पुरानी मार्केट है भाई, इमारत बहुत पुरानी इमारत है। वो आज के दौर में कब बनाना कोई नहीं बना। ये चार मीनार पहले सेंटर था, सेंटर के हिसाब से यहाँ पे जो है मंडी पूरी मार्केट बनाए थे। ये हर चीज़ की मंडी मार्केट थी पुराने टाइप में। पुराने आगे फूल मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, अफजलगंज है, अफजलगंज है, पूरा अतराफ में नामपल्ली स्टेशन है। यहाँ पे पूरा हिसाब से बनाया थे पुराना। हम 60-70 साल से हमारे बाबा दादा का कारोबार है। हमारा दुकान का नाम अमर फ्रूट कंपनी है। अभी यहाँ से उठ के 86 में यहाँ से उठ के उत्तरापेट गई, उत्तरापेट से उठ के अभी बाटा सिंगारम गई। अभी बाटा सिंगारम में होलसेल मार्केट है। अभी हम लोग तो पुराने हमारे दादा, उसके बाद में बाबा, फिर अब हमारे बच्चे करने का ये दुकान। ये यहाँ पे जो है ना बहुत पुराने कदीम है, कम से कम 60-65 साल से कदीम है। हमारे वालिद साहब से ज़माने में ट्रैफिक इतनी कम थी और बहुत कम थी। बैल मंडी थे जब बैल मंडी थे पूरा बैल मंडी आती थी। ये चौरस्ता था, ये पूरी मार्केट बहुत कदीम मार्केट थी, पुरानी जामा कदीम मार्केट थी। और यहाँ पे जो है कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, अपने आंध्रा से, तमिलनाडु से, सब जगह से माल आता है। यहाँ पे होलसेल में किसानों का माल आता है, पूरा होलसेल में कारोबार होता है। और कारोबार जो है मंडिया वाले, दुकाना वाले पूरे आके यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं। जब मौजमजाही मार्केट का जिक्र होता है तो असलह आर्म्स की दुकानों का जिक्र भी ज़रूरी समझा जाता। मौजमजाही मार्केट के करीब असलह आर्म्स की दुकानें काफ़ी क़दीम मानी जाती। उस दौर में आसिफ जाही ख़ानदान के अफराद यहाँ से असलह आर्म्स ख़रीदा करते थे। तहम अब यहाँ आर्म्स असलह की दुकानें इक्का दुक्का नज़र आएंगी। मौजमजाही मार्केट के करीबी इलाके को जामबाग भी कहा जाता है। इस इलाके की फूल की दुकानें भी काफ़ी क़दीम है। दिन गुजरते गए मौजमजाही मार्केट का पुराना इलाका आहिस्ता आहिस्ता मंजर से गायब होता गया। मौजमजाही मार्केट के करीब सड़कों की तोसी की गई और मेट्रो ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई और फिर GHMC ने मौजमजाही मार्केट की तज़ीनकारी का काम अंजाम दिया। GHMC ने 1918 से 1920 के दरमियान मौजमजाही मार्केट की तज़ीनकारी का काम किया था और उसे एक बाज़ार के साथ साथ सयाहती मरकज़ बनाने की कोशिश की। तज़ीनकारी के बाद मौजमजाही मार्केट के अंदरूनी हिस्से में एक बुलंद बाला तिरंगा भी लगाया गया। ये बुलंद बाला तिरंगा से इस अज़ीमुशान इमारत की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मौजमजाही मार्केट के रूबरू मेट्रो ट्रेन का ब्रिज भी है और यहाँ मेट्रो ट्रेन का भी गुज़र होता है। मौजमजाही मार्केट तमाम सिमतों से खूबसूरत नज़र आती है, चाहे इसका नज़ारा नामपल्ली रोड से किया जाए या अफजलगंज से आने वाली रोड हो या फिर एबिट्स किस्म से जाने वाली रोड। ये शहर का मसरूफ़ तरीन इलाक़ा बन गया। कभी इस रास्ते से बैल बंडियाँ
रक्षों का गुजर होता था। उस वक्त आबादी कम हुआ करती थी। अब शहर की गुंजान आबादी और भारी ट्रैफिक की वजह से मौजम जाही मार्केट का इलाका शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका और भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है। आसिफ जाही हुक्मरानों ने हैदराबाद के चिप्पे चिप्पे में और चौराहों पर अजीम शान तारीख़ी इमारतें खड़े की और तारीख़ी विरसे बनाए हैं। इन तारीख़ी विरसों में एक मौजम जाही मार्केट भी है। ये भी एक अजीम शान तारीख़ी विरसा है जिसका हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया जाना ज़रूरी है। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम मौजम जाही मार्केट एक अजीम तारीख़ी विरसा है। मैं बस इतना ही आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।